بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے بینر تلے تمام صحافی کارکن، نوائے وقت، فیملی میگزین، نیشن کا جو دفتر ہے اس کے ریسیپشن پر کھڑے ہیں، اور ہمارے جو لیڈران ہیں پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے صدر جناب قمرالزمان بگٹی صاحب، وہ رمیزہ نظامی جو اس وقت نمائے وقت گروپ کی ایڈیٹر ان چیف ہیں، مالک ہیں، ان سے مذاکرات کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری بہن رمیزہ نظامی نوائے وقت کے جو بیلکش ہیں، کارکن ہیں، فوٹوگرافرز ہیں، رپورٹرز ہیں، ان کے بارے میں اچھے فیصلے کریں گی اور نرم گوشہ رکھیں گی۔ مجید نظامی اس اخبار کے جو مالک تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا کرے۔ ان کے دور میں بہت ہی آسودگی تھی۔ میں 20 سال نوائے وقت میں بطور فوٹو جرنلسٹ رپورٹر کی خدمات سر انجام دی ہے۔ ہمیں 16 تاریخ کو 15 دن گزرنے کے بعد اگر تنخواہ آدھی بھی ضرورت ہے وہ ایڈوانس مل جاتی تھی۔ میری تنخواہ 30,000 روپے تھی، اور میں 16 تاریخ کو کہتا تھا کہ جی مجھے 15,000 روپے ایڈوانس چاہیے، وجہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اسی وقت کیش میمو پر میرے دستخط دینے ہیں، اور انہوں نے 15,000 روپیہ مجھے دے دینے ہیں۔ عید کے موقع پر ہمیں بونس ملتا تھا، بقرہ عید کے موقع پر بونس ملتا تھا، دسمبر گزرنے کے بعد چھٹیوں کے پیسے بونس کی شکل میں ہمیں ملتے تھے۔ ایک سال میں نوائے وقت گروپ کی طرف سے 3 بونس ہمیں اپنی تنخواہ کے علاوہ ملتے تھے، اور اب صورتحال اتنی ہے کہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنے کارکنوں، اپنے فوٹوگرافر دوستوں کے لیے، کہ ان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ کئی ماہ تنخواہیں نہیں مل رہی۔ ہم بڑے ادب سے، بڑی محبت سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ پاکستان کی صحافت کے جو لیجنڈ ہیں حمید نظامی صاحب جو بانی تھے، اور مجید نظامی صاحب جنہوں نے نوائے وقت کو وہ عروج دیا، کارکنوں کو خوشحالی دی، خدا کے لیے ہماری بہن آپ ان کا خیال رکھے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اس وقت حمید نظامی اور مجید نظامی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ بڑے پریشان ہیں، افسردہ ہیں کہ میرا وہ ادارہ نوائے وقت جو ایک ضمانت تھا کارکن کی خوشحالی کا، ان کی عزت کا، ان کی توقیر کا، ان کے اختیار کا، وہ آج میرے نوائے وقت کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، ان کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ یہ وہ بات کسی عام بندے کے لیے برداشت نہیں کرتے تھے، اور پورے پاکستان میں جب بھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی تھی، ظلم ہوتا تھا، اور وہ لوگ جہاں آتے تھے تو مجید نظامی صاحب ان کا خیال رکھتے تھے، انہیں پیسے دیتے تھے، اپنی جیب سے دیتے تھے، حالانکہ وہ جا کے ملازم نہیں تھے، وہ اتنا کام کرتے تھے۔ لیکن ان کے برعکس آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اور یقین کریں ہم پھر وہی کہیں گے کہ ہم کل بھی سرے دار حقیقت کے امی تھے، ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے۔ میں اپنی بہن رمیزہ سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را
हमीद निजामी साहब, मजीद निजामी साहब इस दुनिया से चले गए, वो नेक नामी लेकर गए, वो ये बिल्डिंग नहीं लेकर गए, ये आपने नहीं बनाई। ये जिन्होंने बुनियाद रखी, जिनके खूने जिगर से, मजीद निजामी साहब कहते हैं मोटरसाइकिल पर मैं बंडल लेकर आता था। मजीद निजामी साहब फरमाते थे एक वक्त वो था कि मैं नवाए वक्त के जो बंडल हैं अपनी साइकिल के पीछे रखकर लेकर आता था अपने दफ्तर। इतनी उन्होंने मेहनत की। और अब जो हाल है वो एक पूरी बिल्डिंगों के मालिक हैं। तो ये कारकुनों के खून पसीने की मेहनत के साथ ही ये बिल्डिंगें बनी हैं। ये नवाए वक्त में पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में एक नाम है। नवाए वक्त हक का अलम बुलंद करता है। तो उसके इदारे में ये हो रहा है, मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है, मैं बड़े अदब से ये गुजारिश कर रहा हूँ। किसी किस्म की कोई बदतमीजी करने का मैं तसव्वुर नहीं कर सकता। मजीद निजामी साहब तो हमारे लिए यूँ थे जैसे मेरा बाप है, जैसे मेरा बुजुर्ग है। उनके साए तले हमें इतना इत्मीनान होता था, हमारे घरेलू मसाइल भी वो हल कर देते थे। और आज उनके चूल्हे ठंडे हो गए हैं, फाकों तक नबज पहुंच गई है और मुझे वो सुनहरे दिन याद आ रहे हैं। वो कहते हैं शेर है रमीजा बीबी आपके लिए, बड़ा अदब से वारिस शाह ने कहा है, वारस ना कर मान वारसा दा, वारस ना कर मान वारसा दा, रब बेवारस कर मार गई। तो आप तो वारस भी नहीं थी, अल्लाह ने आपको वारस बनाया है। मजीद निजामी की अपनी कोई औलाद नहीं है, लेकिन आप उनकी बेटी हैं, उन्होंने आपको बेटी बनाया है। हम तस्लीम करते हैं और हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपको याद कराना चाहते हैं कि आप उनकी फितरी तौर पर वारस नहीं है, कानूनी वारस है। तो जो वारस है वो अल्लाह के पास चले गए। मजीद निजामी तो मालिक थे ना, वो कहाँ है अब? क्या वो नवायों को साथ ले गए? क्या गाड़ियाँ साथ ले गई? तो खुदा के लिए उनकी रूह को परेशान ना करें, शर्मिंदा ना करें। आप खुदा के लिए जो कारकुनों का हक है वो उनको बगैर मांगे क्या दे देती, और उन्होंने हमेशा दिया है। आज तक इस इदारे के दरवाजे पर खड़े होकर किसी ने मांग नहीं की थी, बगैर मांग किए उसे मिलता था। उनके कोई गम में, खुशी में मजीद निजामी साहब जो हमारे बाप की जगह है, अब मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ और मुझे फख्र हो रहा है कि मैंने उनके साथ काम किया, उनसे सीखा है। हमें कौन जानता था? हमें नवाब वक्त ने नाम दिया, हमारे आसूदगी दी, हमें पैसा दिया, इज्जत दी, लेकिन उसके एवज हमने ये खैरात में नहीं लिया सब कुछ। हमने मेहनत की है दिन रात, हमने कभी वक्त नहीं पूछा कि कितने बजे कहाँ जाना है। हमारी ड्यूटी ने लगाई अफगानिस्तान जाना है, हम अफगानिस्तान गए हैं। उनका ईरान जाना है, हम ईरान गए हैं। उनका सऊदिया जाना, हम सऊदिया गए हैं। तो इतना अजीम इदारा, और उसमें ये वक्त आ गया है, तो इसमें सिर्फ यही कह सकता है कि सदा न बागी बुलबुल बोले, सदा न बाग बहारा, सदा न मापे हुस्न जवानी, सदा न सोबत यारा। सदा कुछ भी नहीं रहेगा मेरी बहन, इसलिए सदा आपके लिए दुआएं रहेंगी। हम आज भी मजीद निजामी साहब के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में मुकाम दे, बुलंद मुकाम दे। उन्होंने बड़ा कुछ किया है हमारे बच्चों को, हमें, हम उनके एहसानमंद हैं। लेकिन आप उनके सारे ये खिदमात है उन पर पानी ना फेरें। आपने भी चले जाना है, यहाँ तो कोई भी नहीं रहेगा ना। जिनके लिए कायनात बनी थी, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरवर कौनैन नाना हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने पर्दा कर लिया ताकि कोई ये ना कहे कि जी वो तो यहाँ है, हमारे बाप दादा परदादा लकड़ दादा पितल दादा वो चले गए हैं। वो साथ में सब्र आ जाए। तो आप भी ख्याल रखें। हम आपसे मौजबाना गुजारिश कर रहे हैं, मौजबाना गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। किसी किस्म की कोई बदतमीजी हम सोच भी नहीं सकते। आप हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, लेकिन उस तरक्की में गरीबों का लहू
और उसका हक नहीं होना चाहिए, उसमें हक देकर आपको और तरक्की देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरे मुंह से कोई बात अभी भी निकली है मेरी बहन रमीज़ा निज़ामी, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये जिस बात में कुछ फिक्र कर कह दी है, तो जैसे अल्लामा इकबाल ने शिकवा किया था अल्लाह से कर दिया था, ठीक है, तो आप भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, तो हमने शिकवा किससे करना है? आपसे ही करना है ना। तो ये बात है, बड़ी नवाजी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको आबाद रखे, नवाब को तरक्की दे और ये उसी तरह अरूज पर आ जाए जैसे कभी हमारे दौर में आया था, इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह ताला नाजरीन, ताज़ा सूरत हाल तक पहुँच जाएगी। वहाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं। कमरुज़्ज़मान भट्टी साहब जो पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मुंतखब दूसरी दफ़ा मुंतखब सदर हुए हैं, वो उनसे बात कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये सब कुछ बेहतर होगा, अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। अल्लाह हाफिज। फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी।